दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको राका पोशी नज़र आता है, यहाँ से आपको गोल्डन पीक नज़र आती है, यहाँ से आपको लेडी फिंगर पीक नज़र आती है। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो अब मेहमान ग्रामी कोई 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच चुके हैं। तो वी आर डन विद बलतत फोर्ट एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अलतत फोर्ट। तो गाइस आफ्टर हम लोग अलतत पहुंच चुके हैं और ये मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पे। ये पार्किंग है, पार्किंग से हम चल के जाएंगे अलतत तक। अलतत की कोई हाइक नहीं है, अलतत बहुत फ्लैट सरफेस के ऊपर है। तो अलतत जाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको अलतत के बारे में बताता हूँ। तो गाइस ये एंट्रेंस है अलतत फोर्ट की। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ कितने हैं? मैं ही हूँ। अकेला है? ठीक है। कितने की है? ठीक है, थैंक यू। तो गाइस दिस इज़ द टिकट, ये भी 600 रुपीज़ की है। एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ पोस्ट कार्ड। भेजना मैंने किसी को भी नहीं है, तो ये मैं अपने साथ ही रखूँगा, अपने साथ ही लेके जाऊँगा। 600 पर पर्सन एंड 1500 फॉर अ फॉरनर। ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी जगह पे है। ये खुबानी का दरख्त है, खुबानी से लदा पड़ा है, बट यू कैन नॉट गो इन। ये देखो खुबानियाँ, ये भी खुबानी। तो गाइस वी हैव रीच्ड द पॉइंट जहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे तो अलतत फोर्ट आ जाएगा। इस साइड पे जाएंगे तो वेटिंग एरिया आएगा, नीचे कैफ़े है, साथ में वॉशरूम्स हैं। तो यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं। वो है आपका अलतत फोर्ट। यहाँ पे एक वेटिंग रूम बना हुआ है जहाँ पे आप वेट करते हैं। जिसका गाइड फारिग होगा तो वो आपको अपने साथ गाइडेड टूर के ऊपर लेके जाएगा। अगर आपने खुद जाना तो आप जा सकते हैं। दरवाजे इंतहाई शॉर्ट दहलीज को क्रॉस करते वक्त अपना सर का ख्याल रखिए। अटेंशन डोर फैंस आर लो हाइट while small while it keeps your heads down. Attention to now, I will tell you the brief and the succinct history of Altid Fort. This village name is Altid. This is the second oldest village of Hunza. This Altid Fort is by the historian and the local, it is 900 years old. The name of Hunza. Hunza's actual accent, actual pronunciation, original name is Hunzo. This room I use for two purposes. As a royal kitchen in the center. What is this? This is the fireplace. So to where they were making, cooking and heating. I will see here. This is ancient time cooking pot. It is made of stone.
In ancient times, this pot was using as a pressure cooker, and this room is also used as the conference hall, as the assembly hall, the king of Hunza, and the local notable, local elites used to get together here. They were discussing their public issues, their subject issues here. In this room here, you will find a standing stone, a standing rock. I hope you will be acquainted, you will be familiar with this rock. This is called Shivling or Shivlingam. Have you heard the name of Hindu's god? Shivling. Lord Shiva. This used to be Hindu's god. The Lord Shiva's a statue. In the time of Hindu, when there was Hinduism. At that time, Hindu people were washing this stone by milk, and there is wooden box. Have a look, sir. There is wooden box. It has two compartments. One compartment for flour. You know, flour means atta. And other compartment for grain. Grain means anaj. For the wheat, maize, castor bean, etc. used to store here. Here you will find some Buddhist sign. Have a look, sir. This is the fasting Buddha in meditation position, prayer position, sitting position. You can see in the place of Buddha's head there is a flower. Can you name it flower name? Lotus flower. Lotus flower is considered holy and sacred according to Buddhist. There was existing Hunza state when there was kingdom. At that time this used to be ancient time, dungeon or prison. If somebody commit any serious crime, if somebody rebelled against the king, if there was, and the criminals were catch, they used to bring tear and threw down, after threw down inside kingdom people, put a heavy stone, slab on this hole so that the criminal could not escape, could not run away according to historical in ancient time. This was a living Chambara king and queen. This Chambara used for master purpose as a kitchen, as a bedroom, as a dining hall. In the ancient time, there was no separate kitchen, no separate bedroom, no separate dining hall. One room was using for master purpose, for several for example. This was their fireplace, this was their sitting area where they used to sit here, take their meal for lunch and dinner, and they take a water for sleeping. This was their sleeping there. Have a look over the ceiling. There are some steps, some layers in the ceiling. The total steps are 7 steps. 7 steps has special theme, special meaning. 7 steps indicates, represents 7 skies, 7 land, 7 heaven, 7 days, 7 continent, 7 seas. Now you will find, take a look on the wall here, you will find there are 3 sticks. What is this? First, I will tell you, this is not a hanger for cloth. This is not a hanger for cloth. We call it sundial. Sundial means sun clock, wall clock, ancient watch. You know well, for 1100 years old, 1100 years ago, people haven't had modern technology. They haven't had any instrument or device to calculate the time. They use the modus operandi, a special method. By the help of these 3 pegs, they calculate that how they calculate the time.
how it is function, how it works. When sunrise from the with the wind of sun, when light will move towards the west by the reflection of the light. Here, by the reflection of the light, here you will find stick shadow. When light will move towards the west, simultaneously the stick shadow will mean the direction. By the help of the stick shadow, they calculate their time as well as seasonal changes. From here, we can also see another fort. Look on the border, your trend side. There is Baltit Fort. In the ancient time, the security guard used to sit on the top of the watchtower. They were keeping an eye on the village as well as on the sick road. On the right side of the watchtower, there is a small store where dry fruit, dry apricots to store. They store back side. In the ancient time, how they execute the criminals, how they award death penalty, we will see their way of execution system. तो अल्तद और बल्तद को अलग-अलग एक ही किंग होता था, एक ही किंग, सेम किंग. This used to be capital punishment point or execution point, especially somebody attack to the fort in the article in the here, and they just threw down. This used to ancient time death penalty system. Just threw down. This is ये बल्तित फोर्ट में मेरा फूंजा का समर पैलेस. आप जिस फोर्ट में हैं ये उनका विंटर का पैलेस होता था. इस विंटर पैलेस में टोटल 8 कमरे. यहाँ पे जो कुछ सामान था, वेपन, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें यहाँ से दूसरा फोर्ट शिफ्ट किया गया है. तो बात फोर्ट साइज के लिहाज से बड़ा फोर्ट, उसमें 62 रूम्स है. वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड फोर्ट. दो भाइयों की लड़ाई हुई थी जिसको हाँ, यहाँ पर 2 भाई होते. दोनों भाई जब दोनों भाइयों का एक दूसरे से पावर के खातिर जब लड़ाई हुआ तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया. तो दोनों फिर मैदान साफ हो. तो मैदान जब साफ हो गया तो दोनों फोर्ट एक ही बादशाह के कब्जे में आ गए. तो विंटर में बल्तित फोर्ट में रहे और साउंड में बल्तित फोर्ट. सही. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके भाई, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये 11वीं सेंचुरी के अंदर बना था फोर्ट. अभी जो मैंने आपको फोर्ट का टूर दिया उसके अंदर थोड़ा सा शोर ज़्यादा था. तो 11वीं सेंचुरी और ये इनफेक्ट जो है इसके अंदर भी वही तिब्बत, चाइनीज़ एंड साउथ एशियन आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी और बल्तित फोर्ट की, तो दिस वाज द विंटर रेजिडेंस एंड बल्तित वाज द समर रेजिडेंस. बिफोर दैट, जिस वक्त ये समर और विंटर वाला मामला हुआ, उससे पहले 2 भाई थे, अली एंड शाह अब्बास. इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से शाह अब्बास ने अली को कत्ल कर दिया था एंड देन टुक द पावर. और वो बल्तित फोर्ट के अंदर जाके रिजाइड करने लगे थे. एंड बल्तित फोर्ट लेटर became the power house of Hunza. So
दैट इज़ अबाउट इट। उसके अलावा जो मैंने अभी इसकी एनालिसिस की है कि इसके अंदर भी काफ़ी सारे दौर गुजरे हैं। इसके अंदर बुद्धिज़्म वाला दौर भी गुजरा है, इसके अंदर हिंदुज़म वाला दौर भी गुजरा है, इसके अंदर मुस्लिम दौर भी गुजरा है और जो अभी तक कायम दायम है। तो ये सीन है अल्तित फोर्ट का। आई होप कि आप लोगों को अल्तित फोर्ट पसंद आया होगा। आई होप कि मैंने जस्टिस किया होगा। ऑब्वियसली कैमरे के अंदर उस तरह की चीज़ नहीं आ सकती जिस तरह की ये एक्चुअली है। दिस इज़ बाय फार द मोस्ट इम्प्रेसिव फोर्ट इन नॉर्दर्न एरियाज़ जो मैंने देखा है। पलतत से भी ज़्यादा अच्छा। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हमें आते हुए शायद देरी हो गई या क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया था एंड शोर बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली अगर हमने दोनों फोर्ट्स को एक दिन में विज़िट करना है तो कोई ना कोई एक तो लेट होगा। तो हमने बलतत फोर्ट को बहुत अच्छे टाइम पे विज़िट कर लिया था। अल्तित फोर्ट आते हुए हमें थोड़ी सी देरी होगी जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया। लेकिन समहाउ आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को जितना बेहतर तरीके से इसको दिखा सकूँ, जितना क्लोज़ टू नेचुरल दिखा सकूँ, मैंने कोशिश की है। तो बाकी अब हम होटल चलते हैं और बाकी की बातें हम होटल चल के करते हैं। ये देखें गाइस, ये मेरी बकेट लिस्ट फ्लाई कर रही है इंशाल्लाह वन डे। मैंने इसका पता किया था बट इट वाज क्रेज़ी एक्सपेंसिव। मैं कहा यार पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे अब ये। तो द टेंडम कॉस्ट 25,000 रुपीज़ पर फ्लाइट एंड इट इज़ अराउंड 2500 मीटर्स। तो भाई आपका आ चुका है होटल वापस। एज़ यू कैन सी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12:45 और मैंने काम शुरू करना होता है 12 से 1 के दरमियान में। तो आई एम राइट ऑन टाइम। अब सीन ये कि अल्तित फोर्ट से निकल के मुझे इतनी देर क्यों लगी यहाँ पे आने में, बिकॉज आई हैड टू गो फॉर लॉन्ड्री। मैंने अपने कपड़े देने थे जो अभी तक इस्तेमाल हो चुके हैं वॉश करने के लिए। तो लॉन्ड्री जो सी करीमाबाद में नहीं है। करीमाबाद में जितनी भी लॉन्ड्री है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़े प्रेस करके देती हैं। मैंने वॉश कराने थे इसलिए फिर मुझे आलियाबाद जाना पड़ा, जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय दे के आनी थी, यू नो द फ्यूल। तो चाय भी आ गई है, कपड़े भी दे दिए धोने के लिए एंड राइट बैक ऑन टाइम इन द होटल। अब मैं अपना काम शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले आज हमारा डे बहुत क्रेज़ी था और बहुत अच्छा गुजरा है। हमारा जो ईगल नेस्ट था दैट वाज एपिक, अमेजिंग टाइमिंग। हम जिस वक्त वहाँ पहुँचे हैं नोबडी वाज देयर, जस्ट पीस और बेहतरीन किस्म के खूबसूरत व्यूज़ एंड आई लव्ड इट। उसके बाद फिर हम चले गए हुंजा फूड पेविलियन, जहाँ पे हमने जाके आज बुरक सापी खाया एंड इट वाज आल्सो गुड, अमेजिंग यार। मतलब वो जेन्युइन सही बेहतरीन खाना देते हैं वो। इफ़ यू आर कमिंग टू हुंजा और एनी वेयर, मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू हैव देयर लोकल क्यूजीन, क्योंकि आई थिंक सो फूड इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कल्चर यू नीड टू हैव देयर फूड। अच्छा, उसके अलावा फिर हम लोग बलतत फोर्ट गए विच वॉज अगेन एन अमेजिंग टाइमिंग। जिस वक्त हम पहुँचे वहाँ पे सिर्फ 2 या 4 लोग थे जिन्होंने हमारे साथ अंदर जाना था और गाइडेड टूर बहुत ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद फिर हम लोग निकले आगे अल्तित फोर्ट गए विच वॉज अगेन एन अमेजिंग फूड। बस उसके अंदर थोड़ा सा शोर हमारे साथ इसलिए ज़्यादा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उस वक्त तक उठ चुके होते हैं और फिर ऑब्वियसली बात है वो टूरिस्ट हैं, वो आए हैं तो उन्होंने विज़िट तो करना है, वी कांट सी एनीथिंग। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अल्तित फोर्ट जितना ज़्यादा अच्छा दिखा सकूं वो मैं दिखाऊं। अल्तित फोर्ट बाय फार जितने अभी तक मैंने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स विज़िट किए हैं इन गिलगित, अभी तक का मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो अल्तित फोर्ट है। और इवन दो अल्तित फोर्ट जिनसे वो थोड़ा सा रेजिडेंस भी बन चुकी हुई है उसके अंदर सेरीना की तरफ से, बट स्टिल
अल्तित फोर्ट इज़ सुपर अमेजिंग, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। खैर मूविंग ऑन, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को जितना क्लोज टू नेचर दिखा सकूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसके अंदर कमेंट करें, अपनी कोई सजेशन देनी है वो कमेंट करें, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में ऐड अप करनी है तो वो दें, ताकि हम सारों के नॉलेज में भी इजाफा हो। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।